Hello students, welcome to my YouTube channel. So, the part 1 video is already ready in my YouTube channel. If you have not seen, please go and see. So, today we are going to see the precautions. Today we are going to revise the precautions, okay? That video I have done the precautions, what a precaution should be taken by security while writing a letter with members, and I have told you what is members. Members are the shareholders who contribute the capital for the company, that is equity shareholders. Okay, first of all, let's revise. When she writes a letter, it has to be a correct information. It should be up to date, and it should be in simple words, simple sentence, and simply style. Okay, and they should be not to use a technical words and long sentence. The letter should be easily understand. Then we learned that a secretary should answer fast. She should not delay 3 or 4 5 days, especially a campaign letter. Then we learned that the secretary has many secrets of the company. She should be very careful. She should not disclose any confidential information of the company to any members or whatever. Then we learned that a letter or whatever secretary should be polite. She should have polite language, respect and mutual understanding language. Okay, and rude language should be avoided with when you are writing a letter to our members. Okay, then we learned legal matters, that is we have to follow the provisions, means security have to follow the provisions of Company Act 2013. And we learned that every situation the security should know that she should be being the company's good name, and she should remove the doubts and queries or difficulties of any members. Okay, in a courtesy or polite manner. Okay, so today we are going to learn letters. First is letter for issue of share certificate. आपको मैंने पहला ही बोला था, जब कोई मेंबर शेयर ख़रीदता है तो उनको शेयर सर्टिफिकेट मिलता है. ओके, सो आज हम वो पढ़ने वाले हैं लेटर कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है. तो ध्यान से सुनिए आपको क्या लिखना है. बहुत ईजी है, डोंट वरी, विल मेक दिस ईजी. ओके, इट इज़ अ टास्क फॉर यू टू स्कोर फुल मार्क्स इन दिस लेटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी कंपनी का नाम डाल दो, कौन सा भी चलेगा. इट शुड बी पब्लिक. रजिस्टर्ड ऑफिस का कुछ भी एड्रेस डाल सकते हो. CIN नंबर कुछ भी डाल सकते हो. देन फ़ोन और फैक्स. ओके, फ़ोन और फैक्स में आप कौन सा भी एक लिख सकते हो, एनी वन. ओके, फ़ोन नंबर कुछ भी डाल सकते हो. रेफरेंस नंबर यू कैन पुट एनीथिंग, ऐसा नहीं है कि सेम ही होना चाहिए. ओके, पर ध्यान से डालना है, सोच समझ कर. फिर वेबसाइट में तो ईमेल कौन सा एक लिखना है आपको. ओके, देन डेट, एनी डेट यू कैन पुट. देन मेंबर, जो भी मेंबर को आप लेटर लिखते हो उनका नाम, एड्रेस आप अपने खुद के डाल सकते हो, कौन सा भी चलेगा. ओके, इट्स नॉट कंपलसरी. फिर सब्जेक्ट आपको कंपलसरी लिखना है. ओके, सो सब्जेक्ट आपको यही लिखना है. फिर डियर सर आपको खुद को लिखना है, डियर सर. नाउ लेट्स स्टार्ट द लेटर. तो इसमें लिखा है कि आपका इन्फॉर्म करना चाहते हो कि रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर, कौन सा भी एप्लीकेशन नंबर डालो, 10, 9, 8, इट्स ऑन यू. आई एम हियर बाय ऑर्गेनाइज टू इशू यू अ शेयर सर्टिफिकेट. इसका मतलब है आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है. आपको मिल जाएगा शेयर सर्टिफिकेट, वो भी 12 नवंबर से 15 डेज़ के भीतर आपको मिल जाएगा. एज मैंशन टू द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ऐसे लिखना है आपको. और फिर जो ये टेबल है, वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके, वेरी इम्पॉर्टेंट. फुल नंबर आप कुछ भी डाल सकते हो, शेयर सर्टिफिकेट नंबर भी कुछ डाल सकते हो. डिस्ट्रिक्ट नंबर, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट.
जो कितना भी टोटल शेयर्स नंबर ऑफ़ शेयर्स लेता है उसमें ही आपको लिखना है। जैसे कि 100 दिया तो 101 to 400 लिखा है तो उसमें 100 आना चाहिए। ओके, फिर आप लिखोगे it shall all be embedded to provide the best of a service to you at all time. This is a respect giving to the member. योर फेथफुली, कंपनी का नाम, साइन आप कंपनी सेक्रेटरी लिखोगे, नाम नहीं लिखोगे। ओके, लिखा भी चलेगा पर नहीं लिखोगे भी चलेगा। फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये तो ये दो टाइप का डिविडेंड होता है, एक फाइनल और एक इंटरमीडिएट। मैंने वही वीडियो में बताया था फाइनल और इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है। फाइनल डिविडेंड तभी दिया जाता है जब साल ख़त्म हो रहा है, जैसे 31 मार्च में के बाद 31 के मार्च में आपको मिल जाता है फाइनल डिविडेंड। और बीच में जब भी प्रॉफिट कुछ हो रहा है तो डिसाइड किया कि बीच में आपको डिविडेंड दिए, 2 टाइम होता है डिविडेंड देना, मतलब नॉट कंपलसरी 2 टाइम होगा, आपको फाइनल में भी मिल जाएगा और उन लोग ने सोचा कि बीच में देना है तो वो इंटरिम डिविडेंड होगा। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं फाइनल पेमेंट। ओके, सो इसमें लिखा है सेम आपको फॉलो करना है पेपर पैटर्न, ये सब कुछ सेम है। ओके, सब्जेक्ट आपको लिखना है नाउ सब्जेक्ट पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, तो आप लिखोगे मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बताया कि आपको कन्वे करें कि हमारा 31 एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था 20 अप्रैल 2019। तो यू कैन सी द डेट ऑफ दिस डेट एंड दिस डेट हैव टू बी 10 और 15 डेज़ फ़र्क होना चाहिए। ओके, 20 और 10 और 15 डेज़ का फ़र्क होना चाहिए। ओके, फाइनल डिविडेंड दैट इज़ 2.5 पर इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द मेंबर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। बता रहे कि मैं आपको, हम लोग का जनरल मीटिंग हुआ था तो हम लोग ने सोचा है कि फ़ाइनल डिविडेंड आपको ₹2.5 मिले। ओके, वो भी ₹10 से, और ईच आपको 31 मार्च 2019 एंडिंग में मिल जाएगा। और फिर लिखा है योर कंपनी हैज़ कंप्लाइन विद ऑल स्टैच्यूटरी प्रोविजंस, सब कुछ प्रोविजंस फॉलो करके आपको दे रहे हैं। फिर आपको ये टेबल बनाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, याद रखना है इस टेबल को। ओके, सो डिटेल्स ऑफ द डिविडेंड पेमेंट टू हैज़ फॉलो रजिस्टर्ड फुल नंबर, सब कुछ आपको डालना है, सेम है, सिर्फ डिविडेंड वॉलेट नंबर, ग्रॉस डिविडेंड, इनकम टैक्स, नेट डिविडेंड इज़ न्यू। ओके, और फिर द डिविडेंड वॉलेंट इज़ अटैच हियर विथ, आपको लिखना है डिविडेंड वॉलेंट अटैच हुआ है। ओके, प्लीज़ डिटेक्ट द डिविडेंड वॉलेंट, ऐसे लिखो, थैंकिंग यू लिखना है। फिर योर फेथफुली, आप कंपनी का नाम, साइन सेक्रेटरी, और फिर एंडल, ये लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, आप क्या अटैच कर रहे हो वो। ओके, ये था 2 लेटर्स हो चुका है, ये हमारा लास्ट लेटर होगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 बचा हुआ 2 लेटर्स करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक, दिस इज़ वन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरमीडिएट डिविडेंड। ओके, बीच में देने का। ओके, वो भी इलेक्ट्रॉनिक से, NEFT से, नहीं तो डायरेक्ट क्रेडिट मिलेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो डियर सर, वी आर प्लीज़, सेम फॉर्मेट है। ओके, we are pleased to inform you that the board of directors of कंपनी का नाम, हम बोर्ड ऑफ, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग किया था 28 मई 2019। तो इसमें और इसमें डेट 10 और 15 डेज़ का फ़र्क होना चाहिए। ओके, और फिर आपको लिखना है रुपीज़, इंटरमीडिएट डिविडेंड कितना होना है, ₹1, और वो भी दैट इज़ 10% पर इक्विटी शेयर, ऑफ फेस वैल्यू कितना है 10 ईच, वो लिखना है। फिर आप लिखोगे हैज़ पर द इंस्ट्रक्शन, कि हम लोग ने बताया कि इंटरमीडिएट डिविडेंड आपको बैंक के अकाउंट में मिल जाएगा, तो इसे लिखना है। और आपका डिविडेंड विल बी पे बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र, कौन से मीडिया से आप यूज़ करने वाले हो आपको बताना है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र। ओके, डायरेक्ट भी होता है और इलेक्ट्रॉनिक भी होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र से दे रहे हो
और फिर द कंपनी हैज़ कंप्लाइंड विथ ऑल द प्रोविजन रिलेटिंग टू द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। हमने सब प्रोविजंस को फॉलो करके आपको पेमेंट कर रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं। ओके, और फिर आप डिटेल लोगे कितना इक्विटी शेयर्स लिया है उन्होंने, डिविडेंड पर शेयर्स कितना पर शेयर्स है, रुपीज़ कितना है पर शेयर्स को, और डिविडेंड अमाउंट, और फिर DPID एंड क्लिनिक नंबर, डेट ऑफ रेमिडेंस, बैंक अकाउंट के कौन सा भी अकाउंट डालो और बैंक का नाम डाल दो, कौन सा भी नंबर डाला चलेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। प्लीज़ वर्टिफाई द क्रेडिट ऑफ अमाउंट इन योर पासबुक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। प्लीज़ वर्टिफाई करो ऐसे लिखोगे। और फिर एज़ पर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स 1961 आप लिखोगे एज़ पर इनकम टैक्स 1961 नो कौन सा भी टैक्स रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ डिडक्ट नहीं किया है, डोंट वरी ऐसे लिखोगे आप। ओके, बट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हैज़ बीन पेड बाय द कंपनी। बट जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ये आपको पे नहीं करना है, कंपनी ने कर दिया है, तो वैसे आपको लिखना है। थैंकिंग यू लिखोगे और योर फेथफुली सेम। ओके, सेम लिखना है, योर फेथफुली कंपनी का नाम, कौन सा भी कंपनी ले सकते हो, ये कंपलसरी नहीं, जो भी कंपनी का है वही लिखना है। नो साइन, कुछ भी साइन डाल सकते हो, मतलब ओके। ऐसा नहीं है कि इसमें जो लिया है वही कंपनी एग्ज़ाम पे लिखना है, नहीं, आप कौन सा भी अपना खुद का नाम मत डालना, बट आप कौन सा भी कंपनी खोल सकते हो, खुद का कुछ भी लिख सकते हो, इट्स ऑन यू। ओके, दिस वॉज वी हैव डन टुडे। हमारा फर्स्ट और सेकेंड लेटर हो गया, सेकेंड लेटर में 2 पार्ट था, वो हो गया। थर्ड लेटर इज़ लेटर फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स, बोनस शेयर इशू कर रहे हैं। एंड फोर्थ लेटर इज़ रिप्लाई लेटर, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक रिवाइज़ करना, रिवाइज़ करो, ये रीड करो, प्रैक्टिस करो आपके बुक्स में 2-3 टाइम्स, जो आपको ये लेटर्स ईजी लगे। Thank you for watching this video. If you have any doubts, comment section is on for you. Like this video, subscribe our channel and share this video to everyone. Thank you.